Hello guys, this is our second video of the chapter Mineral and Power Resources. In our last video, we read about the different minerals and the availability of the minerals कि कहाँ कहाँ पे हमें available होते हैं. Today we are going to read about the power and energy resources. Power refers to the electricity, or you can say that power plays an important role for the development of a particular country. Power resources, we are having some power energies or fossil fuels we are having, so that we can able to generate electricity, we can able to have heat, light and all these things. Basically, power resources which we are having are of two types, conventional and non-conventional sources. First, let us have a look on the conventional source of energy. Now guys, if we talk about the conventional source of energies, so these are those source of energies, basically conventional, it is used, we consider it as an exhaustible means जो exhaust खत्म हो सकते हैं, but over a long period of time. ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करो और ख़त्म हो गए. It will take a lot of time to get exhaust, as well as if we want to renew these resources, it will take thousands of years for the renewal of these conventional sources. Some of the examples we are having of the conventional sources are firewoods, coal, petroleum, natural gases. All these are considered as the conventional sources. Now, these resources cannot be replenished, and if it renew, it will take a lot of time to get regenerated. That's why we need to make a proper judgmental use of all these resources. Can be used judicially. That means proper सोच समझ के हमें इन सब चीज़ों को use करना है. Clear? Now let us have a look on the first conventional source is your firewood. Although it is not in syllabus, but I am going to teach you. Now firewoods. Earlier हमने सुना होगा अभी भी गाँव में हमारे पास बहुत सारे लकड़ी के चूल्हे होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ यूज एज अ फायरवुड्स. तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे, खाना बनाने के लिए वो लोग एक वुड का यूज़ करते थे. ठीक है, एंड वुड इज़ नॉन एज द नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि सपोज अगर एक बार पेड़ काटा है, उस पेड़ को दोबारा जनरेट होने में कम से कम 10 से 12 साल लगेंगे ही लगेंगे. प्रॉपर जनरेट होने में ज़्यादा भी टाइम लग जाता है. ठीक है, सो दैट्स वाई फायरवुड इज कंसिडर्ड एज द conventional source of energy, and it will take a lot of time to get regenerate. Clear? So the use of firewoods is restricted now because it cannot be replenished easily. That's why. The next we are having is our coal. Now if we talk about the coal is a kind of a sedimentary rock and बहुत important fossil fuel है हमारे पास. For the formation of a coal, it take million of years. बहुत साल पहले उसमें डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स होगा, उसके बाद जाके उसमें कुछ कंबशन होगा, फिर हमारे पास कार्बन फ्रेम होगा, फिर हमारे पास कोल फ्रेम होगा. सो बेसिकली इट इज़ दिस कोल इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, और कई बार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, स्टीम इंजन्स में भी यूज़ होता है. अगर आपने मूवी देखी हुई गदर, तो गदर मूवी में एक प्रॉपर सीन दिखाया हुआ है जिसमें वो कोल यूज़ करके ट्रेन को चला रहे हैं. Clear? So in this way, coal was used as a different sources. It is also used to generate electricity. And when coal is used to generate electricity, that particular process is known as our thermal energy plants. Now we are having the coal of 4 categories like peat, lignite, bituminous coal and our anthracite coal. If I talk about the peat जो है हमारे पास सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे अवेलेबल होता है, एंड ये जो हमारे पास बहुत सॉफ्ट सा है, बहुत ईजिली हमारा कंप्रेस्ड हो जाता है. इसमें हमारे पास सबसे कम कार्बन कंटेंट्स होते हैं. दैट इज़ 50 to 60 कार्बन कंटेंट्स, हमारे 50 to 60% कार्बन कंटेंट हमारे पास होता है. सबसे लो क्वालिटी हम इसे कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इज लिग्नाइट जो है वो भी हमारे पास एक लो कार्बन कंटेंट वाला है. दैट इज़ 60 से 70% हमारे पास रहता है, एंड ये जो है इसके यूज़ से हम लोग बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. द रीज़न बीइंग द मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल इन दिस इज़ वेरी हाई. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर ब्राउन कोल.
ठीक है। लिग्नाइट को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा ब्राउन कोल भी हम कंसिडर करते हुए चलते हैं। द नेक्स्ट इज आर बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है हमारे पास एज एन डोमेस्टिक कोल की तरह यूज़ होता है। बेसिकली स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज में भी हमारे पास यही वाला कोल यूज़ होता है, बिकॉज इसमें जो हमारे पास कार्बन कंटेंट्स हैं वो है हमारे पास 70 to 85%। द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग इज एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है वो बहुत डीप इनसाइड अर्थ में हमें अवेलेबल होता है, एंड दिस एंथ्रासाइड इज कंसिडर एज द बेस्टेस्ट क्वालिटी ऑफ carbon we are having because it contains approximately 80 to 85% of the carbon content। इसलिए हमारे पास एक बहुत हाई लेवल का कार्बन कोल हमारे पास यहाँ पे कंसिडर होता हुआ चलता है। इफ़ आई सी अबाउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की नीड है आपको, बिकॉज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है यू कैन सी इट बाय योर सेल्फ। हाँ, इन इंडिया वी आर हैविंग इट इन रानीगंज, इट विच इज़ इन वेस्ट बंगाल, झारिया, धनबाद, बोकारो इज इन झारखंड। सो वी आर हैविंग द डिफरेंट प्लेसेस वेयर द कोल इज अवेलेबल। Now next come on the petroleum. Petroleum is a combination of two Latin words, that is petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil. So which is known as a rock oil, or we can say it as a crude oil. Now the formation of petroleum also takes a n number of years or the 1,000 years, because this petroleum is formed by the decomposition of plants, sea plants and the sea animals. Now this is the actual occurrence of petroleum is thick and black liquid which we get from the inside the earth crust. After जब हमें मिलता है एक एक्चुअल पोजीशन में, दैट पर्टिकुलर सॉइल इज सेंट टू द रिफाइनरीज, जहाँ पे उसमें जाके प्रोसेसिंग होती है, कुछ चेंजेस आते हैं, देन दैट पर्टिकुलर यूज एज अ डीजल्स, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोल एंड एलपीजीज की फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। पेट्रोलियम इज नोन एज आर ब्लैक गोल्ड बिकॉज बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी खासी इनकम भी हमें इससे अर्न हो जाती है। Clear? The next we are having a world distribution and the distribution in India. Just go through with this. I am not going to dictate the names of all these things. The next we are having is the natural gas. Natural से पता चल रहा है कि this is naturally occurring substance on our earth, and ये हमें हमारी पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ साथ ही मिलता है। And this is easy to transport, but transportation become easy when we transport it through the underground pipes. एंड इट इज़ अंडर द हाई, मतलब ये हमारे पास स्टोर होते हैं CNGs एज एन कंप्रेस नेचुरल गैस। एंड जो कंप्रेस CNGs हैं हमारे पास हमारे लिए किस लिए यूज़ होती हैं, हमारे पास व्हीकल्स में हीटिंग, कुकिंग, पावर जनरेशन, इन सब चीज़ों में हमारे पास हमारी जो है नेचुरल गैस हमारी यूज़ होते हुए चलती है। क्लियर? वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज़ नॉट इन योर, मतलब इज़ इन योर सिलेबस, जस्ट गो थ्रू विद दैट by yourself. Next we are having a hydel powers. It is not in your syllabus. Let us proceed further. Next we are having is our non-conventional source of energies. Non-conventional means you can say it as the renewable resources, because these resources are inexhaustible in nature, जो हमारे पास जल्दी से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। And to meet the increasing demand of our economy, we need to have these resources like सोलर एनर्जी तो सबसे कॉमन है, हमने सुना ही है। जियो थर्मल एनर्जी वी आर हैविंग, टाइडल एनर्जीज वी आर हैविंग, विंड एनर्जी प्लांट्स वी आर हैविंग। सो हमारे डिफरेंट प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट लेट अस हैव अ लुक ऑन द सोलर एनर्जी। नाउ सोलर मीन्स सन, ठीक है। इसमें हमने बताया जो हमारे पास सोलर एनर्जी प्लांट्स हैं वो बेसिकली हमें कहाँ से अवेलेबल हो रहा है, सन से। सन इज़ द बेसिक थिंग, और यू कैन से बेसिक सोर्स जहाँ से हमें सब चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7,000 टाइम्स जो है हमारे पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हमारी सोलर एनर्जी की एज़ कम्पेयर टू द डिमांड। एंड सोलर एनर्जी यू कैन से इट एज अ नॉन पॉल्यूटिंग और इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वी आर हैविंग अ डिफरेंट सोलर पैनल्स, जैसे आप इस इमेज में दे सकते हो। इन द सेम वे वी आर हैविंग अ डिफरेंट सोलर एनर्जी पैनल्स, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज सोलर एनर्जीज। और आजकल के टाइम पे दिस इज़ अ वेरी कॉमन पैनल, हर जगह हर किसी के पास ऑलमोस्ट ही हमारे पास हैं। आप अपनी कॉलोनीज़ में भी देख सकते हो, बहुत ईजिली अवेलेबिलिटी है हमारे पास इन सोलर एनर्जी पैनल्स की।
Clear? Next we are having is our wind energy. Wind energy is also inexhaustible in nature. एंड ये कैसे होता है हमारे पास, व्हेन हेवी विंड ब्लोज नो, तो टर्बाइंस एक ऐसे फ़ैन की शेप में हमारे पास, लॉन्ग फैन की शेप में होता है, तो उसकी हेल्प से हमारे पास ये लॉन्ग टर्बाइंस हमारे पास रन करते हैं. देन इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेशन ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी. विंड टर्बाइंस हमारे पास मूव ऑन हुए हुए जैसे फैंस की तरह मूव होने स्टार्ट हुए, और ये हमारे पास एज एन काम करते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. क्लियर? द नेक्स्ट वी आर हैविंग इज आर and basically these wind farms we are having in our China, Germany, Spain, Denmark, Netherlands, USA, UK. तो different areas में हमारे पास ये available है. Clear? The next is our geothermal. Geothermal is not in our syllabus. Come on to the tidal energies. Tidal is like tides. Tides क्या होती हैं? We are having the sea. तो इस तरीके से हमारे पास जो flow होता है, लाइक अप डाउन अप डाउन अप डाउन, जो मूवमेंट होती है हमारे पास हमारी टाइड्स की, वो होती है हमारे पास टाइड्स. सो टाइडल एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब टर्बाइंस हैं, टर्बाइंस की हेल्प से हमारे पास, जो टाइडल एनर्जी की हेल्प से हमारे टर्बाइंस मूव होने स्टार्ट होंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे. ठीक है. अब जो है हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रैंस टाइडल बैरेज जो है हमारे पास फ्रांस में है, गल्फ ऑफ कच्छ जो है हमारे पास वो इंडिया में है. सो दीज आर द टाइडल बैरेजेस वी आर हैविंग इन आर इंडिया, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन एबल टू प्रोड्यूस द electricity, or we can consider it as a tidal energy. The next we are having is the biogas plant. You can say it as a ये हमारे पास बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन होता है. इसमें क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर है, यू कैन से इट एज अ टैंक होता है हमारे पास. वी यूज टू थ्रो एवरीथिंग ओवर देयर, लाइक एनिमल डंग, किचन वेस्टेज, अर्बन वेस्टेज, जो एनिमल्स, जो प्लांट्स हमारे खराब हैं, सब चीज़ें हमने उस पर्टिकुलर टैंक में डाल दी, और हमने उसको एक एयर टाइट बंद कर दिया हमने उसे. देन गैसेस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग देयर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग देयर. सो उन सब चीज़ों की हेल्प से जो बायोगैस प्लांट होता है हमारे पास, बायोगैस रिलीज होती है, एंड विच इज़ यूज एज एन एक्सलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर लाइटनिंग. अब हमारे पास बहुत सारे मेन्योर्स जो इसमें प्रोड्यूस होते हैं बायोगैस प्लांट्स में, वो हमारे पास क्यों होते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे अपने एग्रीकल्चर को यहाँ पे अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, इसीलिए हमारे पास हमारे बायोगैस प्लांट यूज़ होता हुआ चलता है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. दिस न्यूक्लियर पावर इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, सो काइंडली गो थ्रू विद द चैप्टर. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी देन यू गाइज कैन आस्क फ्रॉम मी. Till then, take care and bye bye, guys.